students, so in this video we will study about the second part of biological classification, and in this we will deal with all the kingdom classification system. Three kingdom classification system. Three kingdom classification system was given by Ernest Haeckel. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में. ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री किंगडम. अर्नेस्ट हैकेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम में क्लासीफाई किया. द फर्स्ट वन इज प्लांटिया, द सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा एंड द थर्ड वन इज एनिमेलिया. द न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वॉज इंक्लूडेड टू ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स. ये प्रोटिस्टा एक नया किंगडम ऑर्गेनाइज किया गया इसमें, इन विच देयर इज़ अ लैक ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन. प्रोटिस्टा के पास टिश्यू डिफ्रेंसिएशन की कैपेबिलिटी नहीं थी. दीज आर एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ. इसमें एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ को प्लेस किया गया. लेटर किंगडम प्रोटिस्टा वॉज रिजर्व्ड ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो प्रोटिस्टा किंगडम था वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिजर्व हो गया. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन? द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स आर नॉट सेपरेटेड. इस किंगडम में भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं किया गया. बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. The four kingdom classification system was given by Copeland in the year 1956. He gave four kingdom of classification which include Monera as an additional kingdom. In this, studies are done with the help of an electron microscope. Study जो किया जाता था इसका वो electron microscope की मदद से किया जाता था, because it makes the study of bacteria and related organisms easy because they have different nuclear structure. उसमें different nuclear structure थे comparable to the other organisms, and it also included Monera. It also included prokaryotic organisms. Kingdom Monera में prokaryotic organisms को रखे गए. For example, Eubacteria, Cyanobacteria, blue green bacteria and Archaebacteria. इस किंगडम में भी इसका डीमेरिट क्या था कि किंगडम फंगाई, जो फंगाई था उसको अभी तक किंगडम प्लांट में ही रखा जा रहा था. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker in the year 1969. He uses certain criteria to divide an organisms into five groups, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Criteria which is used by Whittaker are cell structure, that is they are prokaryotes or eukaryotes. Thalamus organization, that is the body of the organisms is differentiated or not. Mode of nutrition, that is it is autotrophic or heterotrophic. Next one is reproduction, and the fifth criteria is phylogenetic, that is how they have evolved and their evolutionary relationship. In this क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया. इसमें पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, फंगाई, मॉसेस को भी इंक्लूड किया गया था प्लांट में, लेकिन कुछ टाइम बाद जो किंगडम था वो उसको डिवाइड कर दिया गया उसके सेल वॉल के बेसिस पे. ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड इनटू किंगडम मोनेरा. जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, कॉरेला and etc. It also bring Paramecium and Amoeba and placed in kingdom Animalia. Animalia kingdom में Paramecium and Amoeba को भी रखा गया which lacks cell wall. It has put together an organisms. ये सारे organisms को साथ में लेकर आया और फिर उसको basis पे उसको divide किया kingdoms में. This happened because the criteria of classification change. ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि अब criteria change हो गया था classification का. Such type of changes takes place in the future also. इस तरीके के changes kingdoms में future में भी होते रहेंगे. Merits of five kingdom classification system. Now Euglena and other type of transition plant and animal is also included in kingdom Protista, and they have given a proper place for that. Fungi has also their own biochemical, physiological and structural organization. Fungi के पास अब खुद का biological, बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि फंगाई कभी भी प्लांट से रिलेटेड था ही नहीं. इन दिस सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम में हम लोग को फंगाई का एक सेपरेट क्लासिफिकेशन किंगडम मिला. अ सेपरेट किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का एक अलग से सिस्टम ऑफ किंगडम बनाया गया विच इंक्लूड्स मोनेरा. उसमें मोनेरा को रखा गया. ऑल मोनेरेंस डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. जो सारे मोनेरेंस हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं on the basis of their cellular, reproductive and physiological organization. वो डिफर किस बेसिस पे करते हैं? उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पे एंड
फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी ऑर्गेनिजम्स का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। दिस सिस्टम शोज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिजम्स। ये ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि कैसे सारे पुराने ऑर्गेनिजम्स और प्लांट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एनिमल प्रोटोजोन, जो एनिमल प्रोटोजोन थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया था, हालांकि वो लोग यूनिसेलुलर प्लांट्स थे। दे शो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल प्रोटोजोन और प्लांट प्रोटोजोन उनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जबकि उन लोग को सेम ही किंगडम में रख दिया गया, डैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। ईस्ट आर दो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, ईस्ट जैसे कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, बट दे डू नॉट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। ईस्ट यूनिसेलुलर यूकेरियोट है लेकिन वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। कॉलेरा एंड क्लमाइडोमोनास ड्रू आर यूनिसेलुलर। ये दोनों यूनिसेलुलर हैं लेकिन फिर भी इसको किंगडम प्लांट में ही रखा गया, बट दे शुड बी केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म्स है और स्लाइम मोल्स, वो कितने फ्लेक्सिबल उनका लाइफस्टाइल है। दे नीड अ क्रिएशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, उन लोग को एक इंटरमीडिएट ग्रुप और किंगडम मिलना चाहिए किंगडम प्रोटिस्टा के बीच में। वायरसेस एंड वायरॉट्स आर नॉट केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस। वायरसेस और वायरॉट्स जो है वो प्रॉपर प्लेस में इस सिस्टम में भी नहीं रखे गए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वूज, हु इज़ अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये कार्ल वूज ने इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं, and he teaches in the University of Illinois. In the year 1990, he introduced 6 kingdom classification system. This system is also named as a 3-domain system. इसको हम लोग 3-domain system भी बोलते हैं, as organisms are classified into 3 domains. इसमें organisms को 3 domains में divide किया गया। इट मेनली यूज बेसिक प्रिंसिपल, ये बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया इज़ द 3rd किंगडम, और जो यू बैक्टीरिया था वो तीसरा किंगडम था। आर्किया विच इज़ द 1st डोमेन ऑफ किंगडम मोनेरा। आर्किया डोमेन इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ये इंक्लूडेड होता है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मोनोलेयर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये मोनोलेयर कोर प्रेजेंट होता है लिपिड का इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड, इसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। इन देयर 16S RNA में, 16S RNA में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। इट कंटेन अ सिंगल किंगडम, ये सिंगल किंगडम होता है इसमें, डैट इज किंगडम आर्की बैक्टीरिया। दिस किंगडम इंक्लूड अर्ली प्रोकैरियोट्स, इसमें अर्ली प्रोकैरियोट्स को ये इंक्लूड करता है, विच लिव्स इन दी एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, दैट इज मेथनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। कैन विथस्टैंड अ हाई टेम्परेचर। थर्मोएसिडोफिल्स टेम्परेचर जो होते हैं वो ऐसे मोनोरेंस होते हैं या ऐसे टाइप ऑफ डोमेन के मोनोरेंस होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। Bacteria, which is the second domain of kingdom Monera. The bacteria domain consists of the typical prokaryotes. जो domain होता है बैक्टीरिया का वो typical prokaryotes का होता है। उसमें जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता है। दे डू नॉट हैव अ माइक्रो चैम्बर्स, उसमें माइक्रो चैम्बर्स नहीं होते हैं फॉर सेपरेट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट माइक्रो चैम्बर्स नहीं होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ सिंगल किंगडम, इसमें भी एक सिंगल किंगडम होता है, डैट इज़ किंगडम यू बैक्टीरिया। इसके जो मेंबर्स होते हैं दे हैव अ पेप्टिग्लाइकोजन सेल, जिसमें सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, एंड हैव अ नेकेड डीएनए, इसमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, एंड हैव अ कोइल्ड फॉर्म, वो कोइल्ड फॉर्म में होता है इसका डीएनए। ग्लाइकोजन एक्ट एज अ फूड रिजर्व, जो इसमें फूड रिजर्व होता है वो होता है ग्लाइकोजन। द सैप वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें सैप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, एंड 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इसमें। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसाइड्स, रिकेसाइड्स, स्पाइरोचायराइड्स, साइनोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूटिस एक्सेट्रा।
Eukarya. Eukarya is the third domain of kingdom Monera. This domain of eukarya contains all the eukaryotes. इसमें सारे eukaryotes होते हैं. These living forms are originated by the symbiotic association. इसमें जो living organisms का जो origination होता है that is originate by symbiotic association between some archaebacteria and eubacteria. eubacteria और archaebacteria के बीच में जो symbiotic association होता है उसकी मदद से ये लोग फॉर्म कर पाते हैं. देयर आर 4 किंगडम ऑफ दिस डोमेन. इसमें 4 डोमेन होते हैं, 4 किंगडम होते हैं इस डोमेन में. किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया. डिफरेंस बिटवीन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकार्या. आर्किया इज अ प्रोकैरियोट. आर्किया प्रोकैरियोट होता है. बैक्टीरिया इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक and eukarya is a eukaryotic. Archaea has some protein which is similar to histone. आर्किया के पास जो प्रोटीन होते हैं that is similar to histone. बैक्टीरिया के पास कोई हिस्टोन नहीं होते हैं and eukarya have some histones. आर्किया has some introns also. आर्किया के पास कुछ introns होते हैं. बैक्टीरिया have no introns and eukarya contain mostly introns. eukarya के पास mostly introns होते हैं. आर्किया का जो साइज़ होता है that is 70s राइबोसोम्स. उसका 70s राइबोसोम्स का साइज़ होता है. बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है दैट इज़ 70s राइबोसोम्स एंड यूकार्या का जो साइज़ होता है दैट इज़ 80s राइबोसोम्स. आर्किया का जो सेल वॉल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन बट लैक पेप्टिक ग्लाइकोजन. उसमें पेप्टिग्लिन जो होता है वो नहीं होता है आर्किया के सेल वॉल में. बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिक ग्लाइकन एंड यूकार्या में सेल वॉल जनरली प्रेजेंट नहीं होता है. प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल वॉल में एंड फंगाई के जो सेल वॉल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन.